होंगे मधुसूदन केला से। मधुसूदन केला को किसी तरह का इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और देखिए मधु ऑलरेडी जुड़ चुके हैं ईटी नाउ पे निकुंज के साथ बातचीत में। आइए हम भी शामिल हो जाते हैं उसमें। You know, more than just a market commentator, he's someone I've always admired for his ability and intellect. Madhu, fantastic to have you back on ET Now. Thank you so very much for joining us. 2021, Madhu, has been a great year. I won't say great, but it's been a bumper and a grand year. Whichever way you look at it, whichever sector or theme you talk about, its investors have really made pots of money in 2021. What is your view for 2022? Will the party continue? Will the bull market remain intact? Nikunj, first of all, thank you so much. You are one person I've always enjoyed interacting throughout last 15-20 years since we have known each other. So thank you very much and wishing you really best to all your viewers as well. So Nikunj, I think it's been as you said, in terms of stock market, in terms of gain, in terms of portfolio improvement, I wouldn't hesitate to say that it's been an extraordinary year, not one which one would have expected in the beginning of 2020 when this pandemic started, right? And I distinctly remember you having called me the day the lockdown was announced, and there was an extreme panic, and but I was hopeful. I hope you remember our conversation. I said, "Abhi to lockdown ho gaya hai." And now, obviously, since then, there's been extraordinary performance in a lot of sectors, individual stocks. So, will it continue in 2022? So, there are two things, Nikunj, here. One is that will we see the same magnitude of gains and the same magnitude of returns? I don't think so. I am empathetically saying I don't think so. However, do we see any significant corrections in the market? Like, you know, if there is anything which the market doesn't know and we are all worried about, you know, a lot of this noise which is being spoken is obviously known to the market. So I don't even expect any very, very significant and a meaningful correction. So I think 22 will be a year of moderate return. It will be a year of, again, stock picking, sector picking. If you can take right bets into right sectors, I think there is still money to be made in 2022. Madhu, let's understand why 2021 has been such a great year. Like you said, that everybody is surprised with the magnitude and with the pace of the return. What has surprised everybody? Why do you think at beginning of 2021 nobody was anticipating this kind of a bumper year? I would say, Nikunj, 2-3 things. One, I don't think anyone expected the kind of liquidity which was being poured into the market, even though we had indication of that. But I think $30-35 trillion of liquidity being poured in the last few quarters has been one of the main drivers for stock returns, I would say. The other thing is clearly, you know, a lot of sectors which benefited because of digitization, because of formalization of economy, and a lot of large companies became very, very large because in this time only the large players with very strong brand equity, with very, very strong balance sheets have been able to survive. So I would say the terminal value of all these large companies has gone up a lot in last 2 years. And thirdly, Nikunj, the fact that, you know, the prices being made, what they were being made in the beginning of 2022, because market were expecting that this pandemic is going to be very serious, and it might take years going by the history that you know, the vaccine will be there or there will be some cure. So the kind of panic which was there that it is going to last for a few years, and this will be a very severe thing. However, you know, given modern science and given the effort put by everyone around the world, the vaccine came much earlier than anticipated in the beginning of the pandemic. So I think all of these factors, extreme panic, low prices,
very high liquidity, pandemic not being as serious as it was anticipated in the beginning, even though the pandemic is not yet over. But right now, people are falling sick. My sympathies for people who have lost their lives in near and dear ones. But people are getting well. There has been a cure. There has been a vaccine. So all of this actually contributed a lot to the surprise return which came in 2021. So let's take those points forward and let's look at the starting points for 2022. Valuations. From Jefferies to Credit Suisse and from CLSA to Morgan Stanley, all brokerages are saying that earnings will be strong, but markets are trading above the historical averages, which means the scope of making double-digit returns is not impossible, but it is tough. So let's spend some time trying to understand valuations. So Nikunj, I would divide it into two parts. The market is clearly divided into two parts. Very definitely there is a valuation discomfort. Absolutely no doubt about it. But if you look at the overall market of, let's say, roughly $3 trillion, I am saying how much of that market, if you think is excessive valuation, where is the valuation discomfort? I would say not more than 10, 15, 20% of the overall market, but rest of there you can find 10, 15, 20% of the market where valuation is still very attractive, and maybe 30, 40% of the market where valuations are what they used to be historically there. But they are not euphoric valuations. See, they are not what we saw in, let's say, in tech bubble in 99, 2000, or what we saw in 2008 in select infra and real estate and other companies. They are nowhere near that. So yes, there is a pocket of the market where there is clear valuation concern. There is, I would say that there is euphoria which I can see. So those pockets, if you don't understand, you have to avoid them. But rest, I don't think market as a whole is in a euphoric valuation. There are still a lot of good companies which are available. Compared to historic valuation also, they are trading cheap. While the Nifty is at 18,000, you can find a lot of companies, a lot of sectors which are maybe still trading at 8,000, 10,000, 12,000 and 14,000 Nifty. So let's divide the market, Madhu, like you always do, in three parts: buy, sell and hold. Based on earnings potential and the underlying valuation, what end of the market is a buy for you? What is hold for you? Where you bought earlier but you are in no mood to sell because you are reasonably confident of earnings? And what is the euphoric part, or you think that markets will be disappointed with the earnings delivery? So Nikunj, clearly I've been very consistent. I am more tilted towards the stocks which are linked to economy. The stocks which are going to do well in a cyclical upturn of the economy. The stocks which are linked more towards manufacturing, more towards exports. So my clear basket of buy are sectors which are falling into this larger theme, right? The stocks which I will hold are the companies which are bought even though the valuations have gone up, but they are not euphoric, wherein I still feel that these companies, in spite of slightly higher valuations, will still do well over the next 3-5 years or so, because we have seen it's very, very difficult. It's only possible in a hindsight that you buy a company X, it goes down 20%, you are able to sell it at higher price and again able to buy it. All those in practical 30 years of my investing careers, I don't think it is only true in paper. So wherever you have got entry into good companies, and even though stock prices have gone up and the valuations have also on a higher side, I wouldn't sell those companies. Third are the companies where clearly there is some kind of a euphoria. You can see this in some newly listed companies. You can see this in some specialty chemical companies. You can obviously those things are for everyone to see. Now there again,
if you have a 10-year view and if you think the markets are going to get consolidated and some of these people will have tremendous pricing power and you want to buy it from those 8, 10, 7-year perspective, which I do not have, neither the understanding nor that kind of horizon to invest in these companies at these valuations. So I would say that, you know, those are avoid for me personally. हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो मैं हिंदी में सवाल पूछता हूँ। बैंक्स की बात करते हैं और फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। बैंक्स आर अंडर परफॉर्मिंग एंड द अंडर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो देयर इन इंश्योरेंस एंड द अंडर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इन देयर एएमसी स्टॉक्स। तो अगर सब इकोनॉमी को लेकर के, अर्निंग्स को लेकर के एक जनरल राय है कि ट्रेजेक्ट्री ऊंची रहेगी, तो बैंक्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं और बैंक्स के साथ इंश्योरेंस और एएमसी के स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? सो निकुंज मेरे भाई, वो बैंक्स में स्वीट स्पॉट लगता है। मैं बोलूँगा पूरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है जब अंडर परफॉर्म करता है तभी तो रिटर्न का पॉसिबिलिटी होता है ना। जब यूफोरिया होता है तो रिटर्न का बड़ा पॉसिबिलिटी थोड़ी होता है। यूफोरिया में तो मोमेंटम होता है एंड यू कैन enjoy the momentum if you have the holding already. मुझे बैंक्स निकुंज काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी काफ़ी करेक्ट हुए हैं और काफ़ी कंसोलिडेट हुए हैं। काफ़ी प्रोविज़न के पीरियड से हम गुजरे हैं लास्ट 3-4 साल में। तो मुझे लगता है सेलेक्टिवली नाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड ऑल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक और सेलेक्ट एनबीएफसीज, ये पूरा सेक्टर ही मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम अ नेक्स्ट 2-3 ईयर परस्पेक्टिव। यहाँ पे क्या है, आप जो भी कंपनी ले रहे हैं ना, उनको उसको समझना, उसका इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ समझना, उसका मैनेजमेंट का क्वालिटी समझना, उनका बोरोइंग का कैपेबिलिटी, वो कितना क्वांटम बोरो कर सकते हैं और ये ना क्या रेट पे बोरो कर सकते हैं, अल्टीमेटली वही आपका रिटर्न इवेंचुअली डिटरमिन करता है। मुझे लगता है इस सेक्टर में काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ है और ये निकुंज मार्केट का ब्यूटी है ना। ये सब वॉलेटिलिटी में अगर ये जो कंपनियां जिसकी बैलेंस शीट 4-5 साल में क्लीन हो गई है और ये कंपनियां कोई भी कल कुछ फेड में हो जावे और यहाँ पे 10-15% का ये कुछ सेलेक्ट कंपनियां 10-15% घट जाए, अब उनका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, तो वही मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और मुझे फाइनेंशियल सेक्टर में वो क्लियर अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक इन्वेस्टर के तरीके से अगर आप देखिएगा, अगर आपका 3-4 साल की अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मधु, आपने हमारे व्यूवर्स को पेंडेमिक के समय बताया था कि आप पीएसयू बैंक्स पे काफ़ी बुलिश हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो राय थी हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इस साल ज़बरदस्त उछाल आया है, तो क्या वो री रेटिंग जो पीएसयू बैंक्स में थी, पीएसयू बैंक्स बिलो बुक आ चुके थे पेंडेमिक के समय, क्या वो री रेटिंग ख़त्म हो चुकी है? बिल्कुल ही नहीं निकुंज, मैं बोलूँगा इतनी जल्दी थोड़ी, जो कोई सेक्टर 15 साल अच्छा नहीं किया वो 6 महीने में थोड़ी ख़त्म हो जाएगा दोस्त। और अभी तो मैं बोल रहा हूँ हम अपन बिगनिंग ऑफ द री रेटिंग साइकिल पे हैं, अभी बिगनिंग है। हाउएवर ये देखिए क्या होता है, कोई स्टॉक अगर 100% बढ़ गया या 70% बढ़ गया तो हमेशा वो 20-25% करेक्ट हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो। तो मैं बोलूँगा ऑन डिक्लाइंस वो अभी भी बाय है मेरे नज़रिए में। अभी भी जो सेक्टर का जो एक ब्रॉड हाइपोथेसिस था हमारा, दैट यू नो प्रोविजंस काफ़ी हो चुका है, इनके एब्सोल्यूट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे आएंगे, आने वाले सालों में प्रोविजन बहुत कम होगा, इनका कैपिटल ऑलरेडी रेज हो चुका है, वो दूसरे नॉन कोर एसेट्स, नॉन कोर इन्वेस्टमेंट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और अभी एक कैपेक्स साइकिल जो लोन ग्रोथ पिछले 4-5 साल में नहीं हुआ, वो लोन ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि री रेटिंग हो चुकी है। ऑन ए कंट्री मैं बोलूँगा अभी बिगनिंग है साइकिल का, एंड इसमें कोई भी करेक्शन आवे तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी यहाँ देखूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ निकुंज, अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो आई है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और सेलेक्ट एनबीएफसीज में भी यही मेरा रुझान है कि वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, अगर आप देखिएगा एडजस्ट करके सब ये प्रोविज़न जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी किया है, तो सम ऑफ दीज बैंक्स आर एन अ वेरी सॉलिड विकेट। एंड स्पेसिफिकली अगर टॉप लाइन ग्रोथ आ गया ना निकुंज, अगर आप देखो आज की घड़ी पे
1000 करोड़ रुपए का आपको केपेक्स रिलेटेड लोन चाहिए ना, इतने बड़े देश में मेरे हिसाब से 7-8 बैंक से ज़्यादा नहीं है जो आपको 1000 करोड़ का केपेक्स रिलेटेड लोन दे सकते हैं। तो जब लोन की डिमांड आएगी तो प्राइसिंग पावर अपने आप आ जाएगा, और प्राइसिंग पावर आएगा तो प्रॉफिट इनका बढ़ने वाला ही है। अगर प्रॉफिट बढ़ा और प्रोविजन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा जो रिपोर्टेड प्रॉफिट होगा पैट, वो काफ़ी हायर होगा, हायर देन व्हाट द मार्केट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस से हमको घबराना चाहिए, रादर इस अंडर परफॉर्मेंस में हमको अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। मतलब कुछ साल पहले आपने एक टर्म यूज़ करा था एक हमारे शो पर, बेयर मार्केट सर्वाइवर। तो बेयर मार्केट तो है नहीं, अब बुल मार्केट है, तो एक मैं नया टर्म शायद ऐड करता हूँ, फ्रॉम बेयर मार्केट सर्वाइवर टू बुल मार्केट विनर्स। तो ये बुल मार्केट विनर कौन से होंगे इस बार? यही सेक्टर जो अपन ने बात किया निकुंज, बुल मार्केट विनर्स के लिए आपको फाइनेंशियल्स में देखना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग थीम में देखना पड़ेगा, आपको जो कंपनियां सिक्लिकल अपटर्न में पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमी में, जो लोग सरवाइव कर चुके हैं और अब जो लोग ग्रोथ पाथ में हैं। और एक निकुंज जो थीम जिसमें मैं रियल में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, वो है चाइना प्लस थीम। तो चाइना ने वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग को लास्ट 15-20 साल में डोमिनेट किया है, राइट, क्योंकि बहुत सस्ता बहुत पैसा था वहाँ पे, पोल्यूशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, एंड सब लोगों को चाइना से आउटसोर्सिंग करना था। पर ये पैंडेमिक की वजह से मुझे लगता है अब लोग चाइना प्लस देखेंगे जरूर। कितना भी सस्ता वहाँ मिलेगा ना, आदमी एक अल्टरनेट सोर्स जरूर चाहेगा, चाहे वो एपीआईज के लिए हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स के लिए हो, चाहे वो केमिकल्स के लिए हो, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, चाहे और वहाँ पे अभी देखिए लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, वहाँ पे पावर कॉस्ट बढ़ रहा है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है, वहाँ पे पोल्यूशन की वरीज अभी आ रही है। और एज कम्पेयर विद दैट इंडियन गवर्नमेंट आपको पीएलआई दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट प्लीथोरा ऑफ इंसेंटिव्स दे रही है लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स जो कभी अपने देखते देखते 30-35% हुआ करता था, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए हमने 15% कर लिया है। तो मुझे लगता है ये चाइना प्लस जो थीम है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल थीम है। अगर मुझे एक चीज़ आपको आज कंट्रीब्यूट करना है तो वो ये होगा कि आप ये चाइना प्लस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थीम्स में आप विद इन दिस आप एक स्मॉलर थीम्स बनाइए और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखिए। यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी काफ़ी समय के लिए ये थीम चलेगी और यहाँ पे काफ़ी सारे विनर्स निकलेंगे। तो चाइना प्लस थीम जो है मधु, वो सब सेक्टर्स में अप्लाई करता है, टेक्सटाइल में अप्लाई करता है, ऑटोज़ में अप्लाई करता है, केमिकल में अप्लाई करता है। तो थोड़ा नैरो डाउन करते हैं कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना प्लस वन का कौन हो सकता है? देखो ये कह पाना भी बहुत कठिन है, ट्रस्ट मी, क्योंकि अगर केमिकल में भी कोई लीडिंग कंपनी है ना, वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। आपको लगेगा कि ये काफ़ी वैल्यूएशन बढ़ गया है या काफ़ी स्टॉक रनअप हो गए हैं, पर ये बहुत बड़ा स्कोप है निकुंज। $50 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है एपीआईज का चाइना में, एपीआई एंड एपीआई रिलेटेड आइटम्स का। इंडिया का 5 बिलियन है। वहाँ का अगर फ्लैट भी रहता है ना तो इंडिया का डबल हो सकता है 3-4 साल में। तो ये कह पाना कि कौन सी इंडिविजुअल कंपनी इसको कैपिटलाइज कर पाएगी या कौन सा मिनी सेक्टर कैपिटलाइज कर पाएगा, ये अभी मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं तो 25-40 कंपनियों की लिस्ट बना के बहुत ही क्लोजली इसको फॉलो कर रहा हूँ। इन कंपनीज से हम बात करते हैं और हमको सब कंपनीज से रिअफर्मेशन है कि आप जो बोल रहे हो और ये आप जो सोच रहे हो ये सही है। अभी आप देखिए 4 दिन पहले कॉटन का यूएस ने बैन कर दिया। ये भी एक बड़ा थीम है। द जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड चाइना, वो 100% कुछ इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए, कुछ इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपने कॉटन ही बैन कर दिया, वो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है। अब अगर मैं अमेरिका में कॉटन टेक्सटाइल्स चाइना से नहीं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा तो कौन सी बड़ी कंट्री है जहाँ पे और कॉटन की बड़ी कैपेसिटी है, टेक्सटाइल की बड़ी कैपेसिटी है? इंडिया सर्टेनली इज वन ऑफ देम। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि इसमें 5-7 थीम्स में इंडिविजुअल कंपनीज को देखना पड़ेगा रादर देन सेक्टर एज ए होल। मधु, 2021 का एक बड़ा हॉलमार्क ट्रेंड था कि हमने इंटरनेट कंपनीज की लिस्टिंग देखी।
जोमेटो की सक्सेस हुई, पेटीएम को मार पड़ी, पॉलिसी बाज़ार को अच्छा रिस्पांस मिला और नायका ने तो जी वाह बे वाह छक्का ही लगा दिया। तो एक 2022 का बड़ा हॉलमार्क ट्रेंड आपके हिसाब से क्या हो सकता है? हॉलमार्क ट्रेंड निकुंज ये हुआ कि मुझे लगता है इन्फ्लेशन को लेके इस वक्त काफ़ी सारा डिस्कशन होएगा अगले 2-4-5 क्वार्टर में। एंड अगेन अगर ये इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है, और निकुंज मेरे 30 साल के अनुभव में भी देखा है, ये ब्रॉड ट्रेंड्स को हम फॉलो ही कर सकते हैं। इसको प्रिडिक्ट कर पाना ना बहुत कठिन होता है, और इसको प्रिडिक्ट करके मार्केट का व्यू बना पाना कि ग्लोबल इन्फ्लेशन आ जाएगा इसलिए मैं आज पूरा कैश क्रिएट कर लूँ, ये कुछ बहुत बड़े बड़े फंड्स का खेल है। अब मुझे तो मेरे लिए तो मैं तो फॉलोअर हूँ, तो मैं एक इन्फ्लेशन के बारे में जो नॉइज़ होगी अगले 6 महीने के अंदर उसको बड़े क्लोजली ट्रैक करूँगा। और उससे अगेन इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे सेक्टर्स के लिए ख़राब नहीं है। उससे कौन सी चीज़ें बेनिफिट हो सकती है अगर हायर इन्फ्लेशन आया तो, और वहाँ पे अगर कोई स्टॉक्स अट्रैक्टिवली वैल्यूएबल है तो वहाँ पे मेरी नज़र पूरी है। तो मुझे लगता है अगले 6-8 महीने में ना इसको लेके काफ़ी नॉइज़ होगा ग्लोबली। ये ओमिक्रॉन जो नया वायरस है, इसको लेके भी अगर आप देखिए कल यूके ने 3 का 4 लेवल कर दिया, तो वील हैव टू वॉच दिस एज वेल एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30-60 डेज कि ये कितना लीथल है और इसकी वजह से कोई सप्लाई चेंज डिसरप्ट हो रही है क्या, कहीं पे लॉजिस्टिक्स कुछ डिसरप्ट हो रहे हैं क्या। ये एक दूसरी चीज़ है जो एटलीस्ट नियर टर्म हमको 2-3 महीने के लिए बैक ऑफ द माइंड में रखनी पड़ेगी कि इसका ग्लोबली कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। मधु, ये जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, एक समय आया था शेयर बाजार के अंदर जिसमें जिन कंपनीज में डेट था शेयर बाजार उनको पनिश कर रहा था। ग्रोथ नहीं थी, डेट ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे। अब वो साइकिल उल्टी चल रही है। एक समय आया था शेयर बाजार के अंदर पोलराइज हो चुका था मार्केट, 15, 20, 25-30 शेयर ही चल रहे थे। अब मार्केट ब्रेथ काफ़ी ओपन हो रही है। तो इन दो ट्रेंड्स पे बात करते हैं। डेट एक खराब वर्ड था और पोलराइजेशन एक नया नॉर्मल था। तो इन जनरल आपको स्मॉल और मिड कैप को लेकर के आपकी क्या राय है? और जो कंपनीज अब डेट दोबारा बढ़ा रही हैं, क्या मार्केट उनको दोबारा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देगा या मार्केट खुश है उनसे? नहीं, मुझे नहीं लगता निकुंज। मैंने आपके चैनल में आपको ही बोला था 6 महीना पहले, इफ़ यू रिमेंबर, कि मुझे नहीं लगता है कि ये 6% ब्याज में अगर मेरे पास 20% ROC कमाने के प्रोजेक्ट्स हैं तो 6% ब्याज में पैसा डेट में बोरो करने के लिए मुझे हेजिटेट करना चाहिए। बिकॉज कोई भी कंपनी इन अ लाइफ स्पैन, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में हो तो सिर्फ इक्विटी के बल पे तो बड़ी नहीं बन सकती ना निकुंज। फिर ROE कहाँ से आएगा? अगर आप उसको प्रॉपरली डेट और इक्विटी को मिक्स नहीं करोगे तो ROE कहाँ से आएगा? तो मुझे लगता है वो एक साइकिल था निकुंज जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा डेट ले लिया था एज कम्पेयर्ड विद उनका जो बिजनेस सस्टेनेंस और एज कम्पेयर्ड विद देयर इक्विटी। मुझे लगता है वो फेज अभी चला गया। और अब जो कंपनियां लिवरेज कर भी रही है, जब वो डेट ले भी रही है ना, एक तो बैंक वाले ऐसा अबनॉर्मल डेट किसी को देंगे भी नहीं, या अबनॉर्मल डेट मुझे लगता है अभी किसी को मिलेगा भी नहीं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी 0.5:1 डेट इक्विटी पे है, और जो 0.1 पे थी और 0.1 से 0.5 हो रही है, मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। मुझे लगता है कि अगर आपके पास केपेक्स का अच्छा ROE और अच्छा ROC कमाने का प्रोजेक्ट है तो आपको 100% डेट इक्विटी का एक परफेक्ट मिक्स लेके चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो फेज मार्केट का ओवर हो गया जहाँ पे कोई अगर आप कुछ भी थोड़ा डेट लोगे तो मार्केट पनिश करेगा। और जहाँ तक स्मॉल और मिड कैप की बात करी निकुंज, आपने स्मॉल और मिड कैप की बात करी निकुंज, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी बड़ा रनअप हुआ है। तो अब इस वक्त थोड़ा और ज़्यादा बहुत शार्पली फोकस करके काम करने की ज़रूरत है, बहुत थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं एट द सेम टाइम ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट जो मार्केट 2020 में था जिसमें आप कहीं पे भी फिंगर रख दो और पैसा बन जाता था, वो क्लियरली मार्केट नहीं है स्मॉल और मिड कैप में भी। और मुझे लगता है अब आपको कोई स्मॉल और मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मे बी डबल ट्रिपल काम करना होगा और इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड अभी थोड़ा रिस्क भी है
बट ऑब्वियसली बड़ा रिटर्न और बड़ा लॉन्गर टर्म कैगर तो इस मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करके होता है. तो आई एम स्टिल होपफुल कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है. हाउएवर आई एम सीइंग एंड फाइंडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज नाउ इन लार्ज कैप. जितना आप पैसा लगा सकते हो लार्ज कैप में और वहाँ पे जो अट्रैक्टिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है और वहाँ पे जो लिक्विडिटी है, वहाँ पे मुझे लगता है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लार्ज कैप्स में वर्सेस स्मॉल कैप्स. मधु, ये मेरी राय नहीं है, शेयर बाजार में सबका मानना है गो ईस्ट गो वेस्ट, मधु इज़ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू फार्मा. फार्मा के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं. एक साइड तो हमने देखा है कि एपीआई कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, दूसरी तरफ हमने देखा है प्राइसिंग प्रेशर कई कंपनीज पर आ रहा है. आपकी फार्मा में अच्छी होल्डिंग्स है, बहुत अच्छी पकड़ है. लॉरस, ग्रैन्यूल्स, एक ज़माने में आपने डीवीज़ में बड़ा इन्वेस्टमेंट करा था, हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट था, आईपीओ से शायद आप डीवी में इन्वेस्टेड हैं. क्या लगता है मधु जी, 2022 में क्या फार्मा में एब्सोल्यूट रिटर्न बन सकता है? तो मैं एक बात इसको समझते हैं निकुंज कि क्या हुआ है लास्ट 12 महीने में. तो अगर आप ये देखिएगा कि फार्मा सेक्टर में लास्ट 12-18 महीने में जो एक कोर होता है नए प्रोडक्ट्स का अप्रूवल और यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन, ये समहाउ बंद हो गया. वो यूएस एफडीए के इंस्पेक्टर जा नहीं पाए फैक्ट्री में बिकॉज ऑफ कोरोना और नए प्रोडक्ट्स का अप्रूवल नहीं आया. और दूसरा ये हुआ कि बिकॉज ऑफ कोरोना जो दूसरी लोगों की बीमारी का जो ट्रीटमेंट था वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, राइट. एंड थर्डली लोग ऑब्वियसली थोड़े केयरफुल है, सब आदमी मास्क लगा के घूम रहे हैं, अंदर काफ़ी सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. तो क्लियरली जो लोग का जो सिकनेस है वो भी कम आया है. तो ये सब चीज़ों को अगर मैं मिलाऊं तो क्लियरली वो जो प्राइसिंग प्रेशर है ऑन सेलेक्ट, क्योंकि अब मेरे पास जो भी पोर्टफोलियो है मैं वही पोर्टफोलियो को बेच रहा हूँ बिकॉज मुझे नए प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं आया. तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो मेरे पास अप्रूवल था पर मैं मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया था बिकॉज मुझे नए प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, मैं वो पुराने वाले प्रोडक्ट भी बेच रहा हूँ. तो मुझे ये लगता है कि ये लास्ट 12 महीने में जो हुआ है जो प्राइसिंग पावर, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस थ्री. नाउ अगर मैं अगले 12 महीने देखूँ या अगले 24 महीने देखूँ तो फार्मा स्टॉक्स ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है. इन सब कंपनियों में भी ना इवन खराब से खराब टाइम पे भी प्रॉफिट बनाया है. कोई भी कंपनी लॉस में नहीं है. प्रॉफिट थोड़ा मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम बना होगा पर फिर भी अभी प्रॉफिट बना है. तो मुझे लगता है अगले 12-18 महीने में अब ये इंस्पेक्शंस चालू होंगे, नए प्रोडक्ट्स के अप्रूवल्स आएंगे और सेलेक्टिवली फार्मा सेक्टर में वापस से चुनिंदा शेयरों में कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी. मधु, 2-3 थीम्स की और बात करते हैं. हिस्टोरिकली हमने देखा है जब इन्फ्लेशन वापस आ रही है, मधु जी इन्फ्लेशन तो वापस आ रही है, तो हार्ड एसेट्स आउट परफॉर्म करते हैं, मेटल्स हो, रियल एस्टेट हो. मगर इन्फ्लेशन आने के पहले ही मेटल स्टॉक्स एट एन रिकॉर्ड है और रियल एस्टेट स्टॉक्स में रिकवरी हो चुकी है. सो व्हाट इज द बेस्ट इन्फ्लेशन ट्रेड फॉर 2022? निकुंज मेरे भाई वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप बॉटम से देखोगे ना तो सब चीज़ आपको ऐसा लगेगा बहुत बढ़ चुकी है. लेट अस टेक फॉर इंस्टेंस रियल एस्टेट सेक्टर. यस, बॉटम से तो स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो गए, पर इसमें 2 बात है ना भाई. एक तो बॉटम का ही भाव राइट था क्या, बॉटम में इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई थी कि वहाँ से दिखेगा तो क्लियरली कितने 100% कितने 100% आपको रिटर्न दिख जाएगा. पर मे बी द बॉटम प्राइस इटसेल्फ वाज रॉन्ग, मे बी द हाइपोथेसिस विच मेड दोज बॉटम प्राइसेस दैट इटसेल्फ वाज एक्सट्रीम घबराहट, राइट. सो और आप देखो ये सेक्टर 15 साल के बाद बाहर आ रहा है निकुंज. मैंने 2008 में सुमेर बिल्डर के यहाँ पे घर बेचा था. आज हम 2021 में मोर और लेस भाव वहीं पे है, 2-5 हज़ार रुपये का आगे पीछे होगा. तो ये 15 साल के बाद जब वो सेक्टर ब्रेकआउट होता है ना निकुंज, तो ये 2-4-6 महीने में फिजल आउट नहीं होता है. तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी, पर ये क्या है, अगर कोई शेयर जैसे मैंने आपको बोला 50 का 200 हुआ है तो 200 वाला 150 हमेशा हो सकता है. पर द क्वेश्चन है इसके अगर वो 150 होगा तो घबराहट में हमको प्रॉफिट बुक कर देना है कि हमको लेने का सोचने का है. तो मैं बोलूँगा हमको लेने का सोचने का है. सेकंडली आपने मेटल कंपनीज की बात करी. निकुंज मैं 30 साल से मार्केट में हूँ. जितना डिलीवरेजिंग मैंने मेटल कंपनीज में होते हुए देखा है ना, आउट ऑफ देयर ओन अर्निंग्स,
You know, I have not seen in too many sectors in my lifespan of last 30 years. अब आप देखिए टॉप 5 स्टील कंपनीज का 2019 में 3 से 3.5 लाख करोड़ का डेट था और उस समय सिर्फ 60,000 करोड़ का इबिड्डा था। 2022 में वो इबिड्डा हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ और डेट हो जाएगा लेस देन 1.5 लाख करोड़। तो जो 5-6 टाइम इबिड्डा टू डेट था 2019 में, वो 1:1 के भी नीचे जा रहे हैं इस साल में। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइसेस को तो वो काफ़ी बढ़े हैं, यू नो 3-3, 4-4 गुना हो गया स्टॉक प्राइसेस। पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे ईवी इबिड्डा जो 2019 में था और जो 2022 में होगा, उसमें उतना इजाफा नहीं है जितना इजाफा स्टॉक प्राइसेस में है। तो सिर्फ ये देखना कि 400 का 1200 हो गया है इसलिए बहुत महंगा हो गया ना, वो एक रॉन्ग तरीका होगा देखने का। हमको देखना क्या चाहिए, अगर 2020 में 400 के भाव पे वो 3-4 टाइम ईवी इबिड्डा था और 1200 में 12 टाइम हो गया है क्या ईवी इबिड्डा, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न है। पर वो 4 का अगर 4 ही रहा है तो फिर महंगा कहाँ हुआ ना, नहीं कुछ, वो तो भाव बढ़ा है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। बहुत बढ़िया बात हमारे दर्शकों ने मधु जी ने बताई है कि भाई आप ये मत देखिए नीचे से कितना बड़ा है, वैल्यूएशंस देखिए वो मैटर करती है। मधु, आखिरी 2 सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारा चल रहा है, हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, पर 2 पॉकेट्स हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जी हाँ मधु, इनमें एक एज अ डिस्क्लेमर, हमने बड़े खुल के बहुत सारे सेक्टर्स की बात करी है, बहुत सारा मैंने एग्जांपल्स दिल खोल के दिया है आपको। बट ये मैं बोलना चाहूँगा आपके सारे दर्शकों को एज अ डिस्क्लेमर, आप प्लीज़ अपने वेल्थ एडवाइज़र से पूछिएगा, मेरी बात में अमल करने के पहले आप अपना होमवर्क कीजिएगा और उसके बाद एक्ट कीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। Everybody should know what risk they are taking. Madhu is invested in the market, so his view could be a view which is based on his investments and his, his positioning. So Madhu, 2 सेक्टर्स की बात करते हैं, आखिरी 2 सवाल जिनके अंदर मैसिव री रेटिंग हुई है। एक तो है जी साहब ईवी, हम FY22 की बात कर रहे हैं, मार्केट्स कुछ कंपनियों में FY27 और 28 की कहानी को फ्यूचर में अभी प्रेजेंट में डिस्काउंट कर रहा है। क्या लगता है ईवी और इंटरनेट कंपनीज में अगले 12 महीने में नेगेटिव रिटर्न आएगा या नो रिटर्न आएगा या रिटर्न और आएगा? निकुंज, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक्चुअल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई वैल्यूएशन को देख के शेयर बेच देना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये थीम अभी चालू हुई है और अभी चालू है, राइट। तो इसमें 12 महीने का व्यू लेना दोस्त बड़ा टफ होगा मेरे लिए भी, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि 12 महीने में भाव घट जाएंगे या वैल्यूएशन थोड़ा करेक्ट हो जाएगा, वो इंटायरली पॉसिबल है। पर अगर आप कोई बहुत अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो मैं जल्दी से वो शेयर नहीं बेचूंगा। जी, अगले साल का रेजोल्यूशन क्या है? हम सबसे पूछ रहे हैं जी भी, अगले साल का रेजोल्यूशन क्या? ये साल अच्छा था, हमने सब ने सीखा, कोविड ने कुछ अच्छे, कुछ खट्टे, कुछ डरावने एक्सपीरियंसेस सबकी लाइफ में आए हैं, मगर 2021 में आपने क्या एक रेजोल्यूशन करा है, क्या सीखा है जो 2022 में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? निकुंज, पर्सनल लाइफ में तो काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस हैं, बट प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं बोलूँगा कि ये जो पैसा बना है, प्रिजर्व दिस कैपिटल, रेस्पेक्ट दैट ये 90% चांस से और 10% आपके एफर्ट से बना है, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पैसा बना है इसको अपने माइंड में भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए कि मेरा 100 का 300 हो गया, ये 300 का वापस 900 हो जाएगा। अगर आप वैसा एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो चांसेस है कि आपसे गलतियां ज़्यादा होगी। तो एक तो प्रिजर्व करो कैपिटल को, और दूसरा अगर आप कोई चीज़ में 1 घंटा लगा रहे थे वक्त, तो अभी आप 3 घंटा वक्त लगाओ। बी वेरी वेरी श्योर ऑफ द एक्शंस which you are taking in the market. And third, I would say be stock specific, because ultimately companies make money, not countries or sectors. Ultimately you have to be invested in best companies, and 2022 will be a time of bottom up investing into specific companies where returns are still to be made.
और शायद आपकी राय को हम अभी इम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं मधु जी, बिकॉज आज काफ़ी ज़बरदस्त हमने बातचीत करी है, 30-35 मिनट, आधे घंटे से ऊपर बातचीत करी है, तो ऑब्वियसली वी हैव स्पोकन अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए, और 2022 के लिए आपके परिवार के लिए, माधुरी जी आपकी 2 लड़कियों के लिए ईटी नाउ के दोनों चैनलों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Nikunj. Always pleasure interacting with you, and all the best to your viewers. Have a lovely 2022. Thank you so much.